پاک فوج کے 4 جوان وطن پر قربان۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی 2 کارروائیاں، فتنۃ الخوارج کے 15 دہشت گرد جہنم حاصل۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقہ تالہ میں خفیہ معلومات پر آپریشن کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز اور خوارج میں فائرنگ کا سخت تبادلہ ہوا۔ 9 خوارج مارے گئے۔ ہلاک خوارج میں ونگ لیڈر فرمان، امان اللہ، سعید اور بلال شامل تھے۔ شمالی وزیرستان کے علاقہ میران شاہ میں بھی آپریشن 6 خوارجی ہلاک ہو گئے۔ خوارج سے بہادری سے لڑتے پاک فوج کا ایک اور آفیسر، 3 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ شہداء میں لیفٹیننٹ محمد حسن اشرف، نائب صوبیدار محمد بلال، سپاہی فرحت اللہ، سپاہی ہمت خان شامل۔ 21 سالہ شہید لیفٹیننٹ محمد حسن اشرف کا لاہور سے تعلق علاقے میں مزید خوارجیوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ ISPR لیفٹیننٹ محمد حسن اشرف کی نماز جنازہ لاہور گیریزن میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی شرکت۔ نماز جنازہ میں سینئر فوجی اور سول حکام کی بھی شرکت۔ یہ عظیم قربانی ہمارے بہادر بیٹوں کی غیر متزلزل لگن اور بہادری کی ایک اور درخشاں مثال ہے۔ شہیدوں نے پیارے وطن کی خود مختاری اور دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کے لیے کھڑی ہے۔ وزیر اعظم کی شہید کے نماز جنازہ کے موقع پر گفتگو۔ صدر اور وزیر اعظم کا خوارج کی ہلاکت پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش۔ پاک فوج کے شہداء کی بہادری اور جذبہ حب الوطنی کو سراہا۔ دہشت گرد عناصر کے خاتمے، ملکی دفاع کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل رہے گا۔ صدر آصف علی زرداری کا فتنۃ الخوارج کے مکمل خاتمے کے قومی عزم کا اظہار۔ پاکستان میں دہشت گردی میں افغانستان کا کردار پھر بے نقاب۔ پاکستان میں دہشت گرد حملے بڑھنے کی وجہ افغانستان اور طالبان کے قلعدم TTP کو مسلسل مالی اور لاجسٹک معاونت ہے۔ اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ میں انکشاف سلامتی کونسل کے افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کی افزائش اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی کاوشوں سے متعلق رپورٹ جاری۔ TTP کی افغانستان میں موجودگی اور طاقت برقرار ہے۔ افغانستان میں 2 درجن سے زائد دہشت گرد گروہوں سرگرم ہیں۔ گروہ افغانستان سمیت پورے خطے کی سلامتی کے لیے بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ 2024 میں پاکستان میں 600 سے زائد حملے کیے گئے۔ حملوں کے لیے فتنۃ الخوارج نے افغان سرزمین کا استعمال کیا۔ TTP اور افغان طالبان کے درمیان بڑھتا ہوا تعاون ایک نیا اور خطرناک رجحان ہے۔ کنڑ اور نگہار خوست پختیکا میں نئے تربیتی مرکز قائم کیے گئے ہیں۔ UN سیکورٹی کونسل کے رپورٹ میں بلوچستان لبریشن آرمی کے مجید بریگیڈ کو بھی افغانستان سے مدد ملنے کا انکشاف۔ پاکستان میں امن افغانستان میں امن کے ساتھ مشروط ہے۔ دہشت گردی کے مسئلے سے نپٹنے کے لیے افغانستان کے ساتھ حکومتی سطح پر مذاکرات جلد شروع کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت سیاسی و مذہبی جماعتوں کے اکابرین کے اجلاس میں فیصلہ۔ افغانستان کے ساتھ بامقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے جرگہ تشکیل دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کو امن و امان سے متعلق بہت چیلنجز کا سامنا ہے۔ حالات خراب کرنے میں بیرونی سازشوں کا عمل دخل ہے۔ کرم کا مسئلہ فرقہ واریت کا نہیں، کچھ عناصر اپنے مفاد کے لیے صورتحال خراب کر رہے ہیں۔ موجودہ ملکی صورتحال میں قومی اتحاد و اتفاق کی اشد ضرورت ہے۔ سیاسی اختلافات کے باوجود قومی مفاد کے معاملات ہم سب متفق ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور۔ دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ ہے، اس سے نپٹنے کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہترین تعلقات ہیں جو کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ دورہ امریکہ میں امریکی کانگریس کے ارکان سے ملاقاتیں انتہائی مثبت رہیں۔ وزیر داخلہ کی گفتگو۔ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ پاکستان امریکہ تعلقات باہمی دلچسپی کے امور سمیت 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کی قائم مقام امریکی سفیر کو اسلام آباد کے جشن بہاراں پروگرام میں شرکت کی دعوت۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کر دی۔ پیٹرول ایک روپے سستا، فی لیٹر قیمت 256 روپے 13 پیسے مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے کی کمی۔ ڈیزل فی لیٹر 263 روپے 95 پیسے کا ہو گیا۔ لائٹ ڈیزل 500 روپے 25 پیسے سستا۔
नई कीमत 155 रुपये 81 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे कमी। नई कीमत 171 रुपये 65 पैसे मुकर्रर। कराची डिफेंस में नौजवान मुस्तफा आमिर के कत्ल की तहकीकात में पेशरत। मुलजिम अरमगान के घर पर कालीन से मिलने वाले खून से मुस्तफा की वालिदा का डीएनए मैच कर गया। पुलिस ने डीएनए मैच होने की तस्दीक कर दी है। मुलजिम शेराज ने अदालत में इतराफ़ जुर्म कर लिया। मुस्तफा अरमगान के घर डिफेंस आया, वहाँ हमारा झगड़ा हुआ, हमने इस पर तशद्दुद किया। तशद्दुद के बाद मुस्तफा को मारा और उसकी गाड़ी में ही उसे हब ले गए। मुलजिम का अदालत में बयान। मुलजिम 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। मुलजिम अरमगान के वालिद का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर एहतजाज और शोर शराबा। कामरान कुरैशी की ज़बरदस्ती अदालत के चैम्बर में घुसने की कोशिश। जाकर जज से बोलो मैं मिलने के लिए आया हूँ, अमरीकी शहरी हूँ, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो। मुलजिम के वालिद की पुलिस एहलकारों से बदतमीजी, एहलकार को धक्के दिए। मुलजिम के वालिद के एहतजाज पर पुलिस और रेंजर्स को तलब कर लिया गया। मेरे बेटे को लड़की ने कत्ल करवाया, मकतूल मुस्तफा की वालिदा का इल्ज़ाम। बेटे की कब्र कुशाई की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। मुस्तफा आमिर अगवा और कत्ल केस में गफलत बरतने पर कराची पुलिस चीफ का एक्शन। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर SHO दरख्शां थाने समेत 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। एडिशनल IG कराची जावेद आलम और ने पुलिस ऑफिसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तीनों अफसरान को दरख्शां से अगवा करने के बाद कत्ल किए जाने वाले नौजवान मुस्तफा केस में नाहली और गफलत बरतने पर मुअत्तल किया गया। अडालत जेल के गेट पर फवाद चौधरी और बैरिस्टर शोएब शाहीन के दरमियान झगड़ा। फवाद चौधरी ने शोएब शाहीन को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगने से शाहीन जमीन पर गिर पड़े, बाजू पर चोट लगी। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गालियां दी। जेल अमले ने दोनों के दरमियान बीच बचाव कराया। शोएब शाहीन ने अडालत जेल में बानी को फवाद चौधरी की शिकायत लगाई। मुझे गेट नंबर 5 पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शोएब शाहीन ने बानी को अपना जख्मी हाथ भी दिखाया। बानी ने शिकायत सुनी, अनसुनी कर दी। पूछा कि वो इंसान हकूक़ की पिटीशन का क्या बना। शोएब शाहीन ने मुझे बगोड़ा कहा। बानी PTI के हुक्म पर सुलह कर ली। अब मामला ख़त्म हो गया। फवाद चौधरी की अदालत से वापसी पर गुफ्तगू। शोएब शाहीन ने सुलह की तरदीद कर दी। फवाद चौधरी ने झूठ बोला, कोई सुलह नहीं हुई, कभी मुआफ़ नहीं करूँगा, हम डायरेक्ट बदला लेंगे। शोएब शाहीन की जेल के बाहर गुफ्तगू। मैंने कहा सर ये बात आपने कही है। उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज़ ना करें ना। बहरहाल आप खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई अपने। बस सुलह होगी अब सर। सुलह होगी। किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है। उसने मेरे ऊपर अटैक किया, हमने उससे 3 गुना ज़्यादा उसके ऊपर अटैक किया। हमने उसको ज़्यादा मारा। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने हिसाब बदला उसी वक्त ले लिया। अफसोसनाक वाक़या है, मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब ने मुझे ये भी कहा, स्पेसिफिकली इंडिकेट किया कि आप जाके असद कैसर साहब को ये कहें कि और जो उमर यूब के हमारी मुज़ाकराती कमेटी है कि वो पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातों के साथ और उन जो पार्लियामेंट के अंदर हैं या बाहर हैं उनके साथ बात करें जो कि फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस समझती हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहती हैं, जमहूरियत की बहाली चाहती हैं, तो उनको एक पेज पे लाया जाए ताकि रमज़ान के बाद हम एक एहतजाज की जो उनका एक प्रपोजल है कि वो हम उसको शुरू कर सकें। फवाद चौधरी और शोएब शाहीन की लड़ाई अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। रमज़ान के बाद अपोजिशन इत्तेहाद की तहरीक शुरू हो जाएगी। बानी PTI की रिहाई अपोजिशन इत्तेहाद का एजेंडा नहीं होगा। बानी PTI अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ख़त नहीं लिखेंगे। फैसल चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। मुझे खान ने नहीं निकाला है, मुझे पता है किस शख्स ने पहुंचाई है और क्यों पहुंचाई है। कौन सा शख्स है? वो एक वकील है लाहौर से, सलमान अकरम राजा साहब एंड पार्टी। मासूमाना सवाल है, वजूहात वो जानते हैं। खान साहब किसी ठोस वजह के बगैर ऐसा फैसला नहीं करते, तो ये बात कोई ऐसी ढकी छुपी नहीं है। जो भी वाक़यात हैं उनके इल्म में भी हैं और आपके इल्म में भी, अगर नहीं है तो आ जाएंगे। सलमान अकरम राजा ने मुझे पार्टी से निकलवाया, शेर अफजल मरवत का इल्ज़ाम। सलमान अकरम राजा ने मरवत का पार्टी से निकलवाने का दावा मुस्तरद कर दिया। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला बानी PTI का है। बानी ने फैसला किसी ठोस बुनियाद पर ही किया है।
बैकडोर राब्तों का इल्म नहीं, बानी किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। वो बनी गाला जैसी ऑफर मुस्तरद कर चुके अपोजिशन जमातों का अलायंस खुशाइंद है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, मरवत को पार्टी से निकालने का मरवत से पूछें, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी नहीं, लीडर जेल में होने के बावजूद पार्टी इकट्ठी है। पीटीआई में से बानी का ग्रुप है। ग्रैंड अलायंस से मुतालिक मीटिंग्स हो रही हैं, आइंदा हफ्ते लाहेअमल देंगे। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया टॉक। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, ये उसी से ही पूछे जी, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। क्या पीटीआई में कोई ग्रुप बंदी है? कुछ लोग खान साहब के पास चले जाते हैं। देखिए नहीं, ग्रुप बंदियाँ कोई नहीं है, यानी ये पहली पार्टी है जो के बावजूद उसके कि उसका लीडर, उसकी मेजर लीडरशिप वो जेल में है, लेकिन पार्टी बिल्कुल इकट्ठी है। और उसके साथ जो हमने वो कमेटी बनाई है जो कि बुनियादी उन चीज़ों को देख रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में तो अब उसको आपको एक कॉन्क्रीट एक लाहेअमल भी मिलेगा। जौहर खान 26वीं तरमीम के रोज छुपे रहे, उनकी पार्टी में जगह नहीं है। बानी पीटीआई का 26वीं तरमीम के रोज ऐवान से गायब अरकान को पार्टी से निकालने का फैसला। बानी पीटीआई की ज़ैन कुरैशी के अलावा तमाम गैर हाजिर अरकान असम्बली को निकालने की हिदायत। बानी पीटीआई ने पार्टी की सीनियर क़यादत को पैगाम भिजवा दिया। 26वीं तरमीम के रोज जरका सेनेटर फैसल सलीम, ज़ैन कुरैशी गायब थे। पीटीआई ने असलम गुम्मन, रियाज फतियाना, ज़ैन कुरैशी, मिकदाद अली, औरंगजेब खिच्ची को शोकाज नोटिस जारी किए थे। ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब भी पार्टी राब्ते में नहीं थे। पंजाब में ज़राअत को जदीद बनाने का इनकलाबी इक़दाम, किसानों को तमाम ज़रूरी सहूलियात एक छत तले फराहम करने के मनसूबे का आगाज़। चोलिस्तान में कंडाई और शापू के इलाकों में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे की इब्तदाई तकरीब। ग्रीन माल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म, ज़री तहकीक और सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह। पंजाब पाकिस्तान का ज़री पावर हाउस बन गया। जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। ग्रीन कारपोरेट मनसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में कामयाबियाँ हौसला अफजा तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ का तकरीब से खिताब। चोलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी। किसानों की तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज़। ज़राअत की तरक्की किसान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़। IMF के मुतालबे पर अमल दरामद। वज़ीर आज़म की PIA को जून तक प्राइवेटाइज करने की हिदायत। PIA के मुआशी हालत की बेहतरी के लिए अमरीका के रूट्स खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट का फैसला। अमरीकी रूट्स खोलने के लिए अमरीकी माहिरीन का वक्त मार्च या अप्रैल में बुलाए जाने की तैयारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत निजकारी PIA हुकाम को हिदायत। इससे कबल PIA की निजकारी अक्टूबर तक करने का फैसला किया गया था। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुश्तरका मुस्तक़बिल के इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ का अज़्म का इज़हार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी हममंसब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मुलाकात। दोनों मुल्कों का इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ और मुश्तरका खुशहाली के अज़्म का अदा। दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, मालियाती शोबे में ताउन बढ़ाने के मौक़े पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर ख़ज़ाना का बुनियादी ढांचे, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मौक़े का जायज़ा। सरमायाकारी के फ़रोग़ और इक़्तिसादी मौक़े की राह हमवार करने पर इत्तफ़ाक़। फ़रीक़ैन का मुसलसल राब्ते और मुश्तरका इक़दामात की अहमियत पर जोर। और सिंध हुकूमत के मज़ीद 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। पैकेज में 1 पंखा, 3 बल्ब, मोबाइल चार्जर शामिल होगा। 5 लाख सोलर सिस्टम भी इसी साल गरीब आवाम में तकसीम करेंगे। सिंध के आवाम को सस्ती बिजली फराहम करेंगे। गरीब पर महंगाई का बोझ है, इसलिए सोलर सिस्टम तकसीम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने सोलराइजेशन का मनसूबा शुरू किया। सैलाब मुतासरीन के लिए 2026 तक 21 लाख घरों को मुकम्मल करेंगे। वफाकी हुकूमत सिंध में सड़कों का काम मुकम्मल करने में नाकाम रही। वफाकी हुकूमत नेशनल हाईवे को भुला चुकी है। 8 साल से इंडस हाईवे का
यही हाल है। वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा सड़कों की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सिंध में सोलर पार्क्स भी तामीर किए जा रहे हैं। लोगों को सोलर होम सिस्टम तकसीम किए जा रहे हैं। सोलर होम सिस्टम 0 से 100 यूनिट तक फ्री दिए जाएंगे। नासिर हुसैन शाह। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के शदीद झटके। जुड़वा शहरों मरी और गिद्दोनुमा में इमारतें लरस गई। सवात, पिशावर, एबटाबाद, मलाकंड समेत दीगर इलाकों में भी ज़लज़ले। आज़ाद कश्मीर में खुई रट्टा, हजीरा, खानपुर, हज़ारा और गिरदोनुमा में भी झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.8 और गहराई 17 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ रावलपिंडी से 8 किलोमीटर जुनूब मशरिक थी।